Yep, we're live. अभी नहीं. We're live, Ramsha. Hello, hi guys. This is Ramsha from Mindstorm Studios. I'm the manager learning initiatives, and I'm here to officially kick off the Winter Game Jam 2023. So I'm just going to share my screen. So give me a second. Yep. Okay. So welcome to the Winter Game Jam 2023 orientation. Here's the agenda for the day. Very brief overview. We'll tell you a bit more about Mindstorm Studios and M Labs. And then we have Mohsin, who will tell you all about the theme and what to expect with the game jam. And in the end, Hira will help us with the Q&A session. So आपके जो भी सवालात हैं, put them in the chat box. जो comment section है YouTube का, and we will get to all of them at the end. तो आपके जो भी questions हैं आप साथ साथ लिखते रहें. Hira will be noting them down, and they will be answered at the end. So हम हमेशा इसी उससे start करते हैं कि why is Mindstorm here? What's the vision? Main purpose ये है कि we know that जो industry है gaming की, that is bigger than film and music combined. And Pakistan is not even a small blip of that entire industry. So to make our mark and to ensure that Pakistan is a global powerhouse of mobile game development, Mindstorm came into existence and has been working for the last few decades. These are some of the snapshots from our work. Bottom right is our studio in Lahore, which all of you can join. Actually, अगर आप लाहौर में हैं तो आप in person attend कर सकते हैं. अभी right after the orientation आपके साथ एक registration form sign हो जाएगा, which you can use if you want to use our space for the duration of the game jam. और उस form में आपको बाकी details भी मिल जाएंगी कि कहाँ located है, क्या timings है and all of that. And you also see there are some photos from the Pasha Awards. This is from last year, but we've also won Ramsha, just second. काफी लोग comments में कह रहे हैं कि echo आ रही है आपकी. So yeah. Maybe I can try without. Yeah, I'll just put my microphone closer. I hope that will help. Yeah, guys, do let us know in the comments if everything's okay now. I'm sure you can continue. Yeah. Okay, let me know if there's any other issue. I'll just continue. ये हमारी evolution है थोड़ी सी over the years of how we started and where we are now. So basically, Mindstorm started with the game called Cricket Revolution. अगर आप में से किसी को याद है तो जो World Cup था 2011 का 2011 का उसकी जो official game थी ICC की Cricket Revolution, that is made by Mindstorm Studios, and that is how we actually came into existence. Over the years, फिर we had the iPhone and Apple और mobile game development के ऊपर बहुत ज़्यादा focus हो गया. There was a boom there, and we sort of pivoted from there. Waxy Taxi बहुत famous game है हमारी. Then we have Coin Dozer as well. I'm sure आप लोगों में से काफ़ी ने ये games कोई ना कोई तो खेली भी होगी. Then we sort of moved towards casual mobile gaming. उसमें हमारे पास Idle Makeover और Super Salon, Hospital Inc जैसी बहुत ज़्यादा games थी. Then in 2020, M Labs came into existence. M Labs का focus ये था कि थोड़ा सा game development की जो industry है, game building industry है पाकिस्तान में, उसे catalyze किया जाए, थोड़ा सा उसको disrupt किया जाए. And recently जो हमारी दो games हैं, Matchball and Tile Garden, they are puzzle games. Puzzle games हम Ramsha, your voice is again breaking. I think they're also the casual genre, लेकिन ये कि so that is what we're doing currently, has happened in the last 7 years. So games, वो यहाँ पे you can see them. Am I audible? Am I audible?
Mohsin, can you hear Yes, me? now I can hear you, but darmiyan mein there was like 5 seconds. Okay. Your screen was also stuck. Sorry about that. I'll just recheck. Khair, so this was a bit of our history, and now we have M Labs. So like I said, M Labs का ज़्यादातर focus इसी पे है कि हम जो game building industry है पाकिस्तान में उसको किस तरह catalyze करें, and उसके जो कुछ features हैं वो ये कि for us it's an investment into the future. वो इस तरह से कि we've realized कि जो बहुत से senior members who've been working in the industry for a long time, we haven't been able to bring a lot of change या disruption या उसको हम fully spark नहीं कर सके उस industry को. What's needed is a fresh perspective, और fresh perspective आएगा कैसे? From youth. So people like you who've maybe spent a few years in the industry, have a few years of experience या बिल्कुल अभी start कर रहे हैं, we want to get them here and sort of explore this industry for us and see कि इसमें क्या क्या opportunities हैं, वो इसमें क्या काम कर सकते हैं, हम इकट्ठे क्या काम कर सकते हैं. So that's the entire thing with M Labs. Like I said, bringing forward fresh perspective वो भी बहुत ज़रूरी है. Then we have industry capacity building. ये भी multiple तरीके से होता है. Informal तो उसके बहुत ज़्यादा processes हैं that M Labs engages in, but one way is also through incubation. So we've also incubated a lot of indie studios, a lot of like developed studios as well over the years जिनको हमने train किया है free of cost, or we've sort of put them out into the industry to see कि वो क्या करते हैं. तो इसके ऊपर भी कुछ interesting news है. I hope आगे discuss भी होगी वो. So from what we do, this is like a very brief overview or एक snapshot है हमारे सारे programs की. Like I mentioned, there's the incubation program. I'll tell you a bit more about this towards the end. Then we have the teachers training program. तो हमने ना सिर्फ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लिंकेजेस फॉर्म किए, एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा लिंकेजेस भी फॉर्म किए. सो आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वी ट्राइड कि हम उधर करिकुलम डेवलप कर सकें, आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ काम कर सकें, उन्हें ट्रेन कर सकें कि व्हाट द गेम बिल्डिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट. देन वी हैव दिस समर प्रोग्राम. इसमें भी काफी आप में से लोगों ने पार्ट लिया होगा. देयर इज अ रिसर्च विंग दैट्स करंटली वर्किंग ऑन अ रिसर्च रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद पाशा on the animation and gaming industry, जिस पे अभी तक as such कोई बहुत ज़्यादा research exist नहीं करती. तो we're hoping that that could also be a really nice step forward in the right direction. Then we have the curriculum initiative. Like I said कि academia को support करने के लिए हमने curriculum भी devise किया है game building के लिए, which has been shared with a lot of universities, और उसमें उन्होंने कुछ parts or या whole as a whole incorporate भी किया है. Then obviously you have the winter game jam and the rookie game jam. Rookie game jam summer में होता है. It's a bit more for beginner level, और winter जो है here we are. So what has been done so far? ये कुछ numbers हैं for the summer program, and all our other programs. We have had more than 4,000 students apply, and more than 3,000 students and professionals have been trained. So my Discord community, that's also really growing at a really fast pace. We have almost 6K members on the Discord community, जिस पे अभी हमारा सारा winter game jam की communication भी होगी. Rookie game jam or winter game jam के लिए we've had more than 2.6K participants, 850 plus teams रह चुकी हैं, और 300 से ज़्यादा submissions हुई हैं, और जो पूरा pool size था that was more than 6 million PKR. And for the teachers training program, we've trained more than 78 teachers, educational leaders from more than 26 universities. जो हमारे industry और academia linkages हैं, we have like upcoming 4 potential game building hubs. वो भी इस तरह डिवाइड हुए हुए हैं कि जो सारे regions हैं, we're planning one in interior Sindh, we're planning one in one of the smaller KPK cities. तो उनको डिवाइस करने का प्लान ही ये है कि हम डिफरेंट जो एरियाज हैं, कॉर्नर्स हैं पाकिस्तान के, हर जगह एक गेम बिल्डिंग हब क्रिएट कर सकें, which can then take this initiative forward. We have more than 10 student chapters. हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट चैप्टर्स हैं जो अपने इवेंट्स करते हैं हमारे साथ कोलैबोरेशन में. उनको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है कि हाउ डू यू एक्चुअली एग्जीक्यूट इवेंट्स. Game jam तो नहीं, but similar to game jam. Then we are also in partnership with 25 plus universities all across Pakistan. Game development का curriculum भी काफी ज़्यादा के साथ share हो चुका है, और 9 इस वक्त final year projects हैं जो हम co-supervise कर रहे हैं as a technical advisor or in collaboration with their academic
professors. So this is the space. Like I said, you can actually come and join us at this space. बहुत purpose built camp पूरा office है, and you'll find lots of fun things to do, lots of fun corners, games भी हैं. You know, it's quite a blast at the M Labs actually. और ये जो the bottom photo is actually from one of the game jams. So yes, like I said, I have something exciting to share on the incubation front. वो ये है कि we are sort of restarting our incubation program. Currently हम incubate कर रहे हैं almost 17 indie studios को, जिन्होंने कोई game produce की थी from one of our game jams, और उनको one-on-one mentorship मिल रही है within the professionals, with professionals in the industry, जो Mindstorm में leading artists हैं, leading product people, leading UI UX, उन सबके साथ उनको mentorship दी जा रही है, in sort of उनको guide किया जा रहा है on how to take the next step. क्योंकि गेम जैम में गेम बनाना और एक्चुअल में एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट आपके पास होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो जो गेम जैम से मार्केट तक का पूरा प्रोसेस और सफर है, दैट इज व्हाट वी आर हेल्पिंग देम विद, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू हेल्प देम विद, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू द कमर्शियलाइजेशन एंड पब्लिशिंग फॉर देम, which is, which means that we're going to be putting in a lot of time, energy and finances into all of these studios that we'll be incubating. और हमारे लिए सक्सेस यही होगी कि down the line, they sort of fly off on their own and are able to produce some amazing games with some international publishers. So to the Winter Game Jam 2023. As you know, it's the biggest game jam of Pakistan. इस दफा हमारे पास 400 से ज़्यादा teams आई हैं, and we have really, really high hopes and high expectations, especially from all of you. And we also have like 990 participants, almost 1,000 from across Pakistan. So you rest assured, like you have to bring your A game, because this is like the cream of the cream from all of Pakistan. So the best professionals, the best students, the best developers, artists, designers, they're all here. So in order to actually win, you're going to have to put up something really amazing. I just wanted to also show you some of the games that जो हमने पहले produce की हुई हैं game jams के अंदर, actually आप लोगों ने produce की हुई हैं. So all of these are version of runner and modifier. जिस तरह जो beach वाली है उसमें swipe action के through modify हो रही है game, which is a really interesting twist. And the one on the right is like a twist on rock paper scissors. So जो हमारी traditional rock paper scissors है, that reimagined in a mobile game. So that's what this is. Or so you can also imagine the kind of work that you need to put in to actually get a winning game. Just another snapshot of the work that we've done. We've within the game jams, the students and the professionals have produced more than 300 games, and we're hoping to take this number up to like 700 with the Winter Game Jam. So with this, on this note, I'm going to hand the mic over back to Mohsin. Mohsin, if you can just announce the theme and we can get started with what the kids can expect going forward. Yes, thank you so much, Ramsha. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are doing well. Super excited again. This is probably my favorite time of the year, जब Winter Game Jam आ रहा होता है, summer के अलावा, because हर बंदा, हर जो participant है वो fully pumped होता है game बनाने के लिए, और वो 10 दिन में जो crunch situation में game बनाते हो, that's just the best thing ever. तो really pumped. And मैं YouTube के comments में भी पढ़ रहा था कि सब लोग यही पूछ रहे हैं, theme क्या है, तो थीम बता देते हैं यार. थीम जरा हौसला रखो, फौरन से थीम नहीं बतानी, काफी चीजें जो पहले कवर करनी होती. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. Ramsha, let me know when the screen is shared. Is it shared now? Yep, it's shared. You can. Yep. So this is the game jam guide. This will be like the holy grail for you guys for the next 10 days. इसमें सब कुछ है जो आप लोगों को इस विंटर गेम जैम में बता सकती है. So हमने ये हमेशा कहते हैं कि जो गाइड है उसको हमेशा रिफर बैक करें. हर चीज गाइड के अंदर मतलब हमने बड़ी डिटेल में लिखी हुई है. So कोई मसला हो, प्लीज गो बैक एंड रीड द गाइड. और इस ओरिएंटेशन के फौरन बाद हम ये गाइड शेयर भी कर देंगे. तो प्लीज किसी को अगर इसकी अलबत्ता ओरिएंटेशन की हम
रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, लेकिन सब चीजें गाइड के अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर है, सो वो दोनों आपकी बेस बनाएंगी पूरी विंटर गेम जैम में। ये इस गाइड का एक ओवरव्यू सा है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ये सारे जो है लिंक हुए हुए आगे जैसे पेजेस में जाके जम हो जाते हैं। तो ये है, ये हमारा थोड़ा सा जो गेम जैम है उसका ब्रेकडाउन है। आज हमारा लॉन्च सेशन है, गेम जैम ऑफिशियली आज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि 10 दिन का गेम जैम है तो हम कल से 10 दिन शुरू कर रहे हैं, तो टेक्निकली फिर 10.5 दिन या फिर 11 दिन अगर आप कहना चाहिए तो 11 दिन का गेम जैम हो जाएगा। हम अगर मोटी मोटी बात करें तो हमें 2 दिन के अंदर अंदर जो आपकी आइडिया स्पेसिफिकेशन है वो हमने लॉक करनी है। तो होगा क्या, द फॉर्मेट इज कि आप सबके जिस तरह चैनल्स बन चुके हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, हर चैनल के लिए एक स्पेसिफिक मेंटोर है। अभी जिस तरह गेम जैम की खत्म होगी, आपको मेंटोर सारे बता दिए जाएंगे, आपके मेंटोर्स कौन कौन है। द मेंटोर्स विल गाइड यू थ्रू आउट द 10 days, लाइक थ्रू आउट, फ्रॉम आइडिया डिस्कस करने से आप लोग 3 4 5 6 आइडियाज, यूल कम अप विद सम आइडियाज जो कि थीम के ऊपर होंगे। जब आप वो कर लेंगे तो गेम आपने मेंटोर्स के साथ सबकी कैलेंडर लिंक्स जो हैं, कैलेंडर लिंक्स वहाँ पे शेयर होंगे, आप वहाँ जाके एक सेशन बुक कर लें। प्लीज कम ऑन द सेशन, ये ना हो कि आपने सेशन बुक किया और आप फिर आए ना। जो भी आपको टाइम फिजिबल लगता है उसमें मल्टीपल टाइम स्लॉट्स दिए होंगे। कुछ मेंटोर्स बहुत स्पेसिफिक टाइम्स पे सिर्फ अवेलेबल हैं, तो आपको उसके अंदर ही उनसे कैटर करना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीपल सेक्शंस मोस्टली मेंटोर्स ने दिए हुए हैं। जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो इनिशियली हम ये नहीं डिस्कस करेंगे गेम बननी कैसे है, गेम में होगा क्या क्या नहीं होगा, हम सिर्फ आइडिया को लॉक करे होंगे। जब आइडिया लॉक हो जाएगा तो एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अपना आइडिया आप थोड़ा शेयर करेंगे, वो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर हो जाएगा। उस डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग अपना आइडिया, उसमें 5 6 7 8 हेडिंग्स हैं, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। वंस दैट्स डन, एक लिंक शेयर कर देंगी रमशा आपके साथ, उसके अंदर आपने जो डिजाइन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करा देना, और फिर आपका आइडिया लॉक हो जाएगा। वंस योर आइडिया इज लॉक्ड, यू स्टार्ट द डेव प्रोसेस। उसके लिए अगेन द मेंटोर्स आर अवेलेबल। तो आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, आई कैन अश्योर यू कि जो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसके अंदर 6,000 लोग हैं। इट्स द बिगेस्ट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आप सिंपली या फिर जनरल के चैनल के अंदर, या जिस भी, अगर आपको कोई आर्ट्स का मसला आता है तो आर्ट्स के चैनल के अंदर, या डेवलपमेंट का मसला है डेवलपमेंट के चैनल के अंदर, कहीं पे भी वहां पोस्ट कर दें और somebody will answer your question, तो आपकी क्वेरी आंसर हो जाएगी। एक और चीज भी है कि हमने विंटर गेम जैम 23 का एक स्पेसिफिक हब भी बना दिया। उस हब के अंदर 3 चैनल्स हैं, अनाउंसमेंट्स का, लॉबी का और रिसोर्सेज का। जो भी आपका अनाउंसमेंट होगी वो अनाउंसमेंट के अंदर हम बता देंगे, और हम जो आपके गेम जैम के जो आपकी टीम चैनल्स है उसके अंदर भी हम वो सारी अनाउंसमेंट्स कर देंगे। लॉबी के अंदर यू कैन अगेन जस्ट पोस्ट एनी क्वेरीज, टॉक टू पीपल, डू व्हाटएवर यू वांट। लॉबी जो है विंटर गेम जैम की, वो सिर्फ विंटर गेम जैम के पार्टिसिपेंट्स को नजर आएगी, और जो भी विंटर गेम जैम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको नहीं नजर आएगी। So that's just specifically a space for you guys where you guys can talk and share ideas, और जो क्वेरीज है वहां पे आप अपनी सामने रख सकते हो और लोग आपको बता देंगे। अगर कोई ऐसी क्वेरी हुई जो कि किसी से सॉल्व ना हुई, विल ऑब्वियसली हेल्प यू गाइज इन सॉल्विंग देम। अगर आप आगे जाएं तो जब हमारा रूकी गेम जैम होता है उसके अंदर हम हमेशा एक फ्राइडे रखते हैं, जिसके अंदर आप आ सकते हो और आगे बातचीत कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। इस मरतबा हमारा एक ही जैम फ्राइडे आ रहा है पूरे गेम जैम के अंदर, विच इज 24th। आप उस दिन आके जितनी भी अभी गेम बनी हो आप आके हमसे शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जैम 24th एक जैम फ्राइडे होगा, और ऑब्वियसली उस दिन हम कोई खाना पीना भी रखेंगे जरा, मतलब कि भूखे पेट तो नहीं सबको वापस भेजना। हैविंग सेड दैट, हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस स्पेस इज अवेलेबल फॉर एनीबॉडी टू कम इन, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कि आप आ सकते हैं, तो दिन खुला होगा। आके बैठें, जैम ओवर हियर, यू कैन जैम विद अस ओवर हियर, अपनी टीम लेके आए, गेट टू एक्सपीरियंस व्हाट द कल्चर इज लाइक एंड सो ऑन सो। तो आवर ऑफिस प्रेमिसेस इज ओपन। रमशा विल शेयर अ फॉर्म विद यू जो कि आपको भरना पड़ेगा in order for you guys to sort of come into our office premises. Submission deadline is on the 2nd of March, midnight. उस दिन होगी, तो हमारे पास एग्जैक्टली 10 दिन बनते हैं अगर हम कल से शुरू करें। अगेन सबमिशन एज ऑलवेज, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो हम एक डिस्कॉर्ड पे सबमिशन फॉर्म अपलोड करेंगे, उसके अंदर आपने 3 चीजें शेयर करनी होती हैं, आपकी गेम की एपीके,
आपकी गेम की सोर्स फाइल और एक गेम की गेम प्ले की वीडियो क्लिप, जो कि आप यूट्यूब पे बस सिंपली अपलोड कर दो और यूट्यूब का लिंक दे दो। तो दो तीन थिंग्स जो कि आपको सबमिट करनी है। एक जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो जो अगला एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट हम मार्च 10 को आप लोगों को फिर बुलाएंगे जस्ट टू हैव सम फन। उस दिन कुछ नहीं करेंगे हम, वी जस्ट हैव अ मीट एंड ग्रीट सेशन। आप लोग आ सकते हो, अपनी गेम पे फीडबैक ले सकते हो, देख सकते हो वे यू गाइस कुड हैव इम्प्रूव्ड। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। अगर नहीं इंटरेस्टेड तो दैट्स कंप्लीटली योर ऑप्शन। और हम उस दिन कोई एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी रखते हैं जस्ट टू टेक द एज ऑफ एंड जस्ट टू हैव फन इन जनरल। और एक क्लोजिंग सेरेमनी है। रमजान जहां तक मुझे पता है 22 से शुरू हो रहा है, तो इस दफा जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो अफ्तारी कम क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो हम जहाँ पे भी करेंगे, लेकिन हमें इस मरतबा रमजान में करनी पड़ेगी। उसी के ऊपर विनर्स अनाउंसमेंट्स भी होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी। और इसके ऊपर हम वी ऑलवेज ट्राई कि हम किसी न किसी तरह कोई ऐसी टॉक रखें जिसपे आप सब लोगों को फायदा हो, और जो कि गेम डेवलपमेंट का जो कि सिर्फ पाकिस्तान का उसके ऊपर सेंटर है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो इस मरतबा का ब्रेकडाउन है वो ये है। अगेन पूरे का पूरा जो हमारा इस मतलब गेम जैम है, लाइक ऑलवेज वो हाइब्रिड होगा। जो लोग आ सकते हैं इन पर्सन हमारे ऑफिस इन लाहौर वो आ जाएं, जो नहीं आ सकते तो गेम जैम का जो हमारा डिस्कॉर्ड का जो हमारा सर्वर है उसके ऊपर ही, अगेन अब सब लोगों को पता लग गया होगा, वहां पे चैनल्स बन चुके हुए हैं। आप उसके अंदर आए, प्लीज सब जो आपकी कम्युनिकेशन है वो उन चैनल्स के अंदर करें। हमेशा ये होता है, एंड मैं हमेशा ये पॉइंट आउट करता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, हमने अपना प्राइवेट चैनल बना लिया। तो यार वो जो चैनल है वो इसलिए बनाया था कि आप लोग एक्सक्लूसिवली उन बात किया करो, कोई मसला नहीं है, खुल के बात करो, हैव फन। मैं सबसे ज्यादा शुगर लगा रहा हूँ टीमों के साथ, सब मेंटोर शुगर लगा रहे होते हैं। इट्स जस्ट अ प्लेस वेयर योर टीम कैन सॉर्ट ऑफ कम इन एंड आइडिएट, बाउंस ऑफ आइडियाज एंड हैव अ गुड टाइम व्हाइल मेकिंग एन एपिक गेम। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टॉक ओवर देयर। उसे हमें भी पता लग जाता है कि हमें तसल्ली होती है, अच्छा यार जो गेम जो टीम आई हुई है वो काम कर रही है, दे ट्यून्ड इन। अदरवाइज काफी मरतबा ये होता है टीम्स आती हैं और वो बस पूरे मतलब ये पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और वो कहते हैं जी हम तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी बातें कर रहे हैं। वेल again I would like to request if you can please utilize the channel to communicate with another। और वहां पे सबसे चीज ये होती है कि अगर आपको ने आपने कोई चीज बनाई है तो फौरन से वहां डाल दें और अपने मेंटर को टैग करें या फिर रमशा को टैग करें या फिर जो भी फैसिलिटेटर्स होंगे पूरे पूरे इस मरतबा गेम जैम में उन्हें टैग करें, ताकि आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिले, आपको प्रॉम्प्ट फीडबैक मिले और आप प्रॉम्प्ट जो अपना जो आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जितना एफिशिएंट हो सके वो बना सके, जो कि सिर्फ 10 दिन है आप लोगों के पास। सो अगेन मैं फिर से इस पे आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस थिंग कि प्लीज यूज द डिस्कॉर्ड चैनल्स एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू गाइस इन व्हाट वे इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। काफी टीम्स कहती हैं जी हम डेडलाइन करीब आ गई हमने कुछ किया नहीं। वेल इफ वी आर इन दैट कम्युनिकेशन, क्योंकि हम तो सबसे डिस्कॉर्ड चैनल के थ्रू ही बात कर सकते हैं, हमें पता होगा और फिर आपको बेहतर गाइड भी कर सके, तो टाइम भी बेहतर मैनेज हो जाएगा। काफी टीम्स के भी जो मेंबर्स हैं वो डिस्कॉर्ड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हमारा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है वो ज्वाइन नहीं किया। तो इस जो गाइड है उसके अंदर ये डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर ले, हम उनको टीम चैनल में फिर आपकी टीम चैनल्स में ऐड कर दें। या तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं विच इज labs.mindstormstudios.com और वहां पे हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है। तो दैट्स दैट। अच्छा, सो दिस इज द मोमेंट यू ऑल बीन वेटिंग फॉर। इस मरतबा जो थीम है उसका नाम है पजल्स। और आई वुड लव टू सी योर आई विल टेक अ पॉज ओवर हियर एंड आई लव टू सी व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ द थीम। अगर आप लोग YouTube की चैट के अंदर बताओगे डू यू लाइक द थीम, कैसी लगी, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस थीम, और पहली बात है व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, इस मरतबा थीम में क्या लग रहा था क्या होगा। तो आई जस्ट टेक अ पॉज ओवर हियर, मैं YouTube चैट पे वापस जा रहा हूँ एंड आई वुड लाइक टू सी के व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ द थीम। आई जस्ट टेक अ पॉज ओवर हियर। So yeah, let's see कि चैट पे क्या चल रहा है। ओके, अच्छा। So, हमारा मलिक ने कहा लव द थीम।
I don't know. This is probably the most interesting spelling of love that I've seen in a while. Yeah, but puzzle, seriously, you got us puzzled. Well, that's the entire bit. And once you make games, you'll unpuzzle this entire thing that is going on. Theme is great, nice. So I have this feeling that सबको theme pasand आएगा. That's great. That's one thing ticked off from our bucket list. कि चलो finally कोई theme pasand आएगी. Ahmed Malik कुछ कह रहा है. Unexpected theme, very broad theme. Okay, didn't see that coming, which is nice. So, all things assured, I think everybody likes the theme, I'm assuming. और जरा अगर comments में आप बता सकें कि theme पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि अभी तो सब लोग in a state of shock है. Oh, I love it. So Ali Murtaza, I'm glad you love it. I also love it. Okay, great theme, will be interesting. So yeah, I have gotten my answer. Everybody likes the theme. So yes, finally, that is good to know. Ramsha, is the screen visible again? I share it again. It is visible here. Yeah, cool. So puzzles. Puzzles होते क्या हैं? हम बचपन से puzzles in one form or the other खेलते आए हैं. किसी ना किसी तरह से हम puzzles के साथ हमारा कोई association रही है, भाई. Be it games, be it board games, be it anything. तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मर्तबा आपको ऐसी थीम दी जाए which is not that production centric, but is more lean towards the design part of things. Because if you come to think about it, you can turn anything into a puzzle. It all depends कि आप किस तरह के puzzle generate करते हो और कितना एक user का interest level रखते हो उसमें. तो it's not, it is less to do with the entire aura और जो उसको जो पूरा visual experience होगा. It's more to do कि आप कितना अच्छा user को catch कर लेते हो playability. तो which is exactly what we want from you guys this time around. और नीचे उसकी कुछ examples दी हुई हैं कि puzzles can be anything. So words can be a puzzle. You can make puzzle out of colors. Trivia से बहुत puzzles बना सकते हो. Drawing mechanic puzzles में डाल सकते हो. Sorting mechanic puzzle में डाल सकते हो. Mechanic per se, but match का जो feature है वो puzzles में डाल सकते हो. Mazes है. Physics is a very interesting area puzzles में. Logic होती है. There's maths. You can just turn anything into a puzzle if you come up with the framework. इसके अंदर आप कोई भी, अगर आप कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी को एक पूरे यूजर को एक जर्नी पे लेके जा रहे हो, उसके अंदर आपने कैसे वो पजल की लॉजिक फिट करनी. सो अनदर थिंग दैट पजल्स ब्रिंग इज दैट पजल्स काफी ज्यादा यूटिलाइज करते हैं कंज्यूमर्स का दिमाग. मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठे हुए और आप लेफ्ट राइट कर रहे हो, यू एक्चुअली थिंक. सो वो थिंकिंग प्रोसेस आपने कैसे अपनी गेम प्ले के अंदर लेके आना है, दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल. पजल्स का एक और चीज भी है कि उनका जो प्लेबल टाइम होता है आप ज्यादा भी कर सकते हो. हम पास्ट में काफी हाइपर कैजुअल जॉनरा में ऑपरेट करते थे. प्लेबिलिटी उसमें आपको काफी फर्क तरीके की है. पजल्स में काफी फर्क तरीके की है. अगर आप लॉजिक किसी गेम में डाल रहे हो और पजल की गेम है तो उसमें यूजर ये नहीं करेगा बस बैठ के या फिर टैप कर रहा है कुछ कर रहा है, वो बैठ के स्क्रीन को देखेगा, ट्राई टू फॉर्म स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर पूरा गेम प्ले आगे लेके जाएगा. तो इट्स अ वेरी न्यू डायमेंशन. एंड आई थिंक जितना हमने टैलेंट देखा है गेम जैम्स में, जो बच्चे आते हैं गेम जैम्स के अंदर, ये एक बहुत इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. नाउ वी जस्ट स्टेप इट अप अ नॉच एंड लेट्स सी हाउ यू गाइस परफॉर्म डिजाइन वाइज in making games. Puzzles again किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं. हाइपर कैजुअल में भी हो सकते हैं, कैजुअल में भी हो सकते हैं, मिडकोर में भी हो सकते हैं. काफी ट्रिपल ए गेम्स हैं जिनमें पजल्स आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी. So with that being said, मैंने तो आपको थोड़ा बहुत एक puzzles का overview दे दिया है, but we have a very special message from somebody who is a very big puzzle freak and a fanatic. And जब हम उनको बताया, जब उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि हमने कहा इस तरह का कोई थीम रखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठहरो, मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि puzzles क्या होते हैं. And that special somebody is Babar Ahmed, who is our CEO. So he's not currently in Pakistan at the moment, but he was in Pakistan last week. और एक पूरा मैसेज रिकॉर्ड करवाया फॉर एवरीबॉडी. सो मैं आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन. और वो हमने जो वीडियो है हमने एक जगह डाली हुई, यूट्यूब पर डाली हुई है. सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड सी कि वो लोग आप वो वीडियो देख सकते. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
screen. Yeah, Ramsha, just let me know if the screen has been shared. Yeah, it's shared, right? Yep, it's visible. Yeah, so I'm just going to play the video, and this is a message from Babar, who's a CEO, to all of you guys. It's not audible, Mohsin. It's not audible. Yeah. Hold on, let me just share. Maybe share your screen as again and enable the audio. I think उससे आपका वैसे म्यूट हो जाएगा but ये वीडियो का ऑडियो चल जाएगा. Yeah, let me just hold on. I'll just do it again. I'm sure let me know if it's audible now. Nope. I can't hear it. Okay, hold on. I don't know what is going on. Okay, Ramsha, let me know कि अब आ रही है आवाज. Nope. Do you want me to try? Yeah, can you try? I don't know what is going on. Yeah. It was हमने पहले टेस्ट किया था चल रही थी. Can you can just go ahead and try. Just send me the link, please. Okay, hold on. Sorry guys, I don't know. ये पहले हमने चेक किया तो चल रही थी, आवाज आ रही थी, हमने एक टेस्ट रन किया था. But you know, when it's bound to go wrong, it's bound to go wrong. You know. So yes, I'm just waiting for Ramsha कि वो आके play कर दे. Please let me know if this works. No, there's no audio. I don't know what is going on. Okay, so what we'll do is we'll just share the entire recording with each team in every team channel so that you can know okay Babar के बारे में बात कर रहे थे. I'm just going to go forward with with the presentation so that हम आगे चलते हैं. अच्छा, here are some examples of puzzle games. Now, puzzle games बहुत फर्क categories में भी आ सकते हैं, right? Puzzle games में भी like I said before, कोई भी गेम पजल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप किसी लॉजिक के थ्रू पजल में कन्वर्ट कर सकते हो गेम को. तो काफी फर्क तरीके की पजल गेम्स होती हैं. They can be level based puzzle games, right? They can be endless puzzle games as well. They can be narrative based puzzle games as well. There can be puzzle games जो कि physics के ऊपर चलती हैं. Prime example of that is अगर आप सबने I'm sure खेली होगी, which is a game called Angry Birds. तो Angry Birds क्या है? Basically Angry Birds एक puzzle है और आपने basically वो puzzle तोड़ना है. इधर birds है, उसमें पैराबोला बनाना है, इस तरह जो चीजें पड़ी हुई उसे गिराना है. That's sort of a puzzle. लेकिन उसके अंदर जो आप देखो the entire mechanic or the entire frame of the game is based on physics. आप किस तरह का पैराबोला बनाते हो, वो चीज कहाँ जाके लैंड होती है, वो कि उसका impact कैसा होगा. So those games, though very interesting, are very difficult to make. Again, जो बाबर की वीडियो उसमें सब चीजें बहुत डिटेल में शेयर हुई हुई हैं और उन्होंने बहुत डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस किया बस पूरी चीजों का. सो आई हाईली रिकमेंड क्या वो वीडियो देख लें ताकि यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पजल गेम्स यू कैन मेक. मॉन्यूमेंट वैली इज एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ पजल गेम. सिंपल एक लड़की है, वो जा रही होती है, उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, वो जर्नी पे जा रही है और उसके दौरान वो पजल्स हैं, वो गेट से निकलती है, नीचे आती है और वो इस तरह पजल्स आगे चलती है. तो ये पूरी पूरी चीज आगे चलती थी. Cut the rope is like one of the best examples of how you can sort of
implement string mechanic या फिर swipe mechanic into a puzzle game. Simply put, आप इसके अंदर rope है, frog पड़ा हुआ है, उसका खाना है, आपने उसको खिलाना है, और there are hurdles. So those hurdles make the entire gameplay into a puzzle. The most famous puzzle game of all time is Tetris. Right? Tetris is simply जो 50 साल से everybody knows about Tetris. उसके अंदर you can just literally होना क्या है, ऊपर से कोई चीज आएगी, एक लेयर आएगी, it's an endless puzzle by the way. वो आते रहेंगे, layers आती रहेंगी, नीचे से वो layers disappear होते रहेंगे as long as वो पूरी लाइन बन जाए. तो once the line is formed, वो नीचे जाता है और ऊपर से नई shapes आ जाती हैं. So that's an example of endless puzzle. इस तरह की there are लातादाद examples, but what we have done is हमने कुछ examples हैं और हमने puzzles की हमने वो यहाँ पे आपके सामने present कर दी हैं. इसी जो हमारी ये जब आपके साथ share होगी उसके अंदर सारी जो games हैं वो उनके App Store पर और Google Play Store का link है. आपका please go ahead and play these games. It's very important that you actually understand these games after playing them, because जब आप गेम खेलते हो काफी चीजें अंदर होती हैं जो आपको पहले दिन सुनने में और देखने में समझ नहीं आती. Once you play them, you actually get the entire feel of the game. For example, wordscapes. That's a very interesting game जिसके अंदर literally आपने words बनाने और अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा स्क्रैबल का भी कंपोनेंट दरमियान में आ जाता है, बट इट्स वेरी सिंपल. आपके पास नीचे वर्ड्स हैं, वो जंबल्ड अप हैं, आपने उनको किसी न किसी तरह ऊपर जो आपके पास पजल है उसके अंदर फिट करनी है, एंड ओनली देन कैन यू गो फॉरवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लेवल. सो इट्स अ लेवल बेस्ड word puzzle game. It's very easy to play. It's like in the hyper casual sort of a genre, but it keeps you intact. So while you're playing this game, you should ask yourself these questions. कि इस गेम के अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि मुझे हुक्ड रख रही है इस गेम को. And that's the bit that is how you can design a beautiful puzzle game. वो इसी तरह आप human psyche समझ सकते हो. So the entire premise of sort of providing you this overview and the entire premise of Babar's video जो हम आपसे शेयर कर देंगे वो यही है कि don't get too stuck on like beautification and all of that. That is important, but in a puzzle game the main thing is the design. और उस डिजाइन के अंदर आपने जितना अच्छा एक प्लेयर को हुक रखना है अपने गेम प्ले के अंदर, उतना ही आप अच्छा गेम प्ले दे सकते हो. अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम दूसरी गेम्स में करते हैं, वो जो शशके जिसे हम कहते हैं, अगेन बाबर ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो पजल गेम्स में इतने रिक्वायर्ड नहीं होते. आप डाल सकते हो, बट दैट इज सेकेंडरी. द प्राइमरी थिंग इज कि आप वो जो आपका जो डिजाइन है पूरी गेम का, वो आप कैसे करते हो और वो इतना फ्लॉलेस हो और वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि बंदा या फिर जो भी प्लेयर आपकी गेम खेलना चाहे और खेलना चाहे और खेलना चाहे और खेलना चाहे, और ये ना हो कि यार वो गेम मेरा इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी इंटरेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा ही है. तो दैट्स हाउ you should all think about on the design part of actually making a puzzle game. There are a lot of other games that you can go on the Play Store or the App Store, और उसके बारे में आप देख सकते हैं puzzles के. But these are some games that we thought were very interesting categories. बहुत फर्क तरीके से इसमें puzzles का जो concept है वो implement हुआ है, and they're very interesting to play. So these were some examples. Again, I cannot stress enough on the fact that you go and play these games. Some games खेलने में it'll take you an hour, but you'll get a feel of what this game provides to you, right? वो satisfaction का जो element है वो इसमें क्या है, और इसमें fun element भी क्या है. So yeah, that's that. इसमें और भी कुछ examples आगे में दी हुई हैं. Color roll is a very good example. Tangle Master is also a very very interesting example of a puzzle game. On the look of it, आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस जो सारी जो strings है वो tangled up हुई हैं, आपको untangle करना है. लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा जो उसका गेम प्ले वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कहते हो यार ये भी मैंने करना है, अगले वाला भी करना है, फिर अगले वाला भी करना है, और उसमें फिर डिफरेंट पजल्स भी आ जाते हैं. तो दिस इज अनदर like this is how puzzles can be imagined with colors and strings. So this is another example. Pull 'em out is also a very interesting example of a puzzle game. आपने
एक सर्वाइवर है, उसको निकालना है, एक एनिमी है, तो आपने उसको सक्सेसफुली उस पजल से निकालना है। तो उसमें भी जो यूजर है उसको पहले सोचना पड़ता है, इट मेक्स हिम थिंक और मेक्स हिम और हर थिंक कि अच्छा मैंने किस तरह डिजाइन करूंगा। एक तो उसका जो नैरेटिव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने एक बंदे को बचाना है, तो वैसे ही बंदा कहता है कि मैं गेम खेलना चाहूंगा, और उसके अंदर आप वेरी सिंपली आप सिर्फ एक स्वाइप से आप पूरा पजल जो है ना वो सॉल्व कर सकते हो, या आप लेवल फेल कर सकते हो। तो वो एक जो बैलेंस है बिटवीन सिंप्लिसिटी, कीपिंग द प्लेयर एंगेज्ड, एंड डेवलपिंग अ वर्ल्ड और एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो एंगेज्ड रहे, दैट्स व्हाट द एंटायर डिजाइन पार्ट ऑफ अ पजल इज। It's not about fancy colors, it's not about like very heavy इसे कहते हैं environments. Environments are important, but the main thing is the design part of things, in puzzle especially. Again, happy glass is another example, a kickstart is another example, water connector is another example. Like, again, I would like to reiterate कि very simple, आप एग्जांपल्स लो, आप किसी भी चीज को पजल में कन्वर्ट कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट हाउ यूज योर इमेजिनेशन to understand a puzzle or to create a puzzle, and how well you can sort of capture the imagination or the psychology of a player, और उसको आप कितनी देर उसमें इन्वॉल्व रख सकते हो. सो दैट्स दैट. सो अगेन ये सब गेम्स आप जाके खेलें, आपको भी समझ आएगी. आई नो इसके काफी ज्यादा सवाल होंगे, सो प्लीज जो भी सवाल हैं वो चैट में डाल दें, एंड आई वुड आंसर देम ऑल एट द एंड ऑफ द सेशन. बट फॉर द टाइम बीइंग इन गेम्स को खेलना बहुत जरूरी है. I again cannot stress enough कि गेम्स जब खेलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पजल्स की समझ आएगी, और यू कैन कम अप विद योर ओन like ideas that you want to implement in your game related to puzzles. That depends entirely up to you. लेकिन एक बेस बनाने के लिए these are perfect examples that will give you a very good understanding of what puzzle games actually are. अच्छा, हमारे अब गेम जैम में there are deliverables. तो हमने deliverables क्या देने हैं? Again, 5 minutes of core gameplay. You can like जिस तरह पुराने गेम जैम्स में होता था, आपने 5 मिनट का कोर गेम प्ले देना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. आप इसके अंदर लेवल बेस्ड प्रोग्रेशन भी डाल सकते हो, लाइक आपने लेवल बेस्ड बनाई, जिस तरह सॉर्ट कट द रोप हैज लेवल्स, तो उस तरह पजल है, लेकिन कट द रोप में एक लेवल खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा जाता है. और देयर लॉट ऑफ एंडलेस पजल गेम्स, देयर लॉट ऑफ गेम इसमें आपके पास प्रोग्रेशन होती रहती है, और आप आगे जाते हो तो आपने पजल सॉल्व करोगे तो आगे जाओगे. अगेन द क्लासिक एग्जांपल इज टेट्रिस. अब प्लीज इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदा को टेट्रिस की वेरिएशन आने लग जाए. टेट्रिस इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट. आप बहुत सी ज्यादा जब हम आइडिएशन करेंगे टीम्स के साथ, तो जिस तरह हमारा आइडिएशन का पूरा मेथोडोलॉजी है, उसमें यू कैन कम अप विद अदर एंडलेस पजल गेम्स एज वेल. So that entirely depends on you. But all these games are meant to be as references. Or Tetris is also a very good, probably the best example of an endless puzzle. But entirely depends on you of कि आप किस तरह से इस पूरी चीज को perceive करते हो. हम हमेशा कहते हैं पोर्ट्रेट मोड में रखें, और हम अगेन we'd like to reiterate कि अपनी गेम पोर्ट्रेट मोड में रखें. However, if it is very difficult for your idea to get implemented in the portrait mode, you can go landscape, but in a very limited case, in very limited cases. That would also depend कि आपके जो mentor हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में. So it is also at the discretion of the mentor. But primarily, we would want you guys to go for portrait. It's very simple. Simply put, एक हाथ से आप आराम से फोन इस्तेमाल कर सकते हो, and just very natural to do as well. Tutorials आप डाल सकते हैं if required. What we would expect is कि आप इस तरह की गेम बनाओ जिसका जो ऑरा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम, और जो होम स्क्रीन आएगी वो इतना एजुकेट कर दे यूजर को कि उसको कोई ट्यूटोरियल की जरूरत ना पड़े. बिकॉज ट्यूटोरियल्स जनरली आर एन एक्स्ट्रा टच पॉइंट इन सॉर्ट ऑफ लेटिंग, और इन सॉर्ट ऑफ जिसके अंदर से प्लेयर्स जो हैं वो अपनी गेम प्ले की तरफ जा रहे होते हैं, उसको पहले देखना पड़ता है, वो अच्छे गेम में ये होगा ये होगा ये होगा. He or she might lose interest सिर्फ ट्यूटोरियल देखते हैं. So the best approach would be कि आप जाके दरमियान में इतना अच्छा उसका जो इनिशियल एनवायरनमेंट है वो बनाए कि यूजर को ऑटोमेटिकली समझ आ जाए. However, if you feel like, and you know this also, जब आप चैन करोगे अपने मेंटर्स के साथ, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अच्छा है इस पर ट्यूटोरियल डाल दो या ना डाल दो, या हम किस तरह बेहतर एजुकेट कर सकते हैं आपके प्लेयर को.
ऑन द ट्यूटोरियल्स, ताकि आपको उसकी जरूरत ना पड़े। कोर मैकेनिक आपका बहुत पॉलिश होना चाहिए। अगेन, यू शुड नो कि आपका प्लेयर किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है गेम के साथ, और पजल्स में स्पेशली वो जो आपका मैकेनिक है। एंड बाय द वे, मैं मैकेनिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूं फॉर दोज ऑफ यू आर न्यू। मैकेनिक्स आर हाउ यू इंटरेक्ट विद द गेम। सो इट कैन बी अ टैप, इट कैन बी अ स्वाइप, इट कैन बी आप ड्रैग कर रहे हो, स्लाइड है, इस तरह की सब चीजें। जब आपका गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें 7-8 मैकेनिक्स लिखे हुए हैं। तो primarily how a player, if I'm playing a game, तो मैं किस तरह गेम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं किस तरह गेम के अंदर जो सब चीजें मूव अराउंड कर रहा हूँ, या फिर जो भी गेम में चल रहा है मैं उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बेसिकली। तो वो मैकेनिक होता है। तो आपका जो मैकेनिक है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर एज टू व्हाट योर मैकेनिक इज, एंड इट शुड बी पॉलिश्ड। ये ना हो कि आप एंड तक कंफ्यूज हो कि यार मैंने कौन सा मैकेनिक डालना है। यू शुड बी, यू शुड हैव, ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैकेनिक में कौन सा डालूंगा। A mechanic का change can just change the entire gameplay of the game, can just change the entire user experience of a player. So it's very important कि आप ये करो, और आप ये अपना मैकेनिक जो है ना इतना जितना पॉलिश कर सको और जितना अच्छा इंप्लीमेंट भी कर सको। जो टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स पे बात आ जाती है कि अच्छा, जब अगर आप स्वाइप कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिव हो, आप चीज ड्रैग कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिव हो, लैग कम से कम, और वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी को मसला आए तो दे कैन ऑलवेज आस्क देयर मेंटर्स फॉर हेल्प। बट जो भी मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ, जो कम्युनिटी है वो इतनी सपोर्टिव है कि आप बस वहां जाके आप एक क्वेरी डालते हो और आपको 6 डिफरेंट लोगों के रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। तो utilize this community, learn from each other. That's why we have this community. Otherwise, what's the point of having 6,000 people who, in one form or the other, are sort of interested in game development or want to know about game building? What's the point of having them under one roof? So, it's always, अगर आप अक्लमंदी का ये मुजाहिरा कि हमारे को पूछ लो, we're always there to help. But community, trust me, community will help you out in like 90% of the problems that come in your way of the game development pipeline. Again, आप हाई क्वालिटी एसेट्स यूज करो। काफी ग्रुप्स का ये मसला था कि हमें एंड में आर्टिस्ट नहीं मिल रहा और हम किस तरह काम करेंगे। तो डू नॉट वरी, हमारे पास काफी ज्यादा एसेट्स है जो कि हम हमेशा शेयर करते हैं। हम इस मरतबा भी शेयर कर रहे हैं, उसमें उनकी तादाद हमेशा ज्यादा होती जाती है। तो इस मरतबा फिर जो उनकी क्वांटिटी और ज्यादा हो गई है। उसका लिंक इसी गेम जैम गाइड के अंदर है। तो प्लीज, हमेशा ये होता है कि लोग कहते हैं एसेट्स कहाँ, एसेट्स कहाँ, एसेट्स कहाँ, और हमने गेम जैम गाइड हमेशा शेयर की होती है। इस मतलब गेम जैम गाइड जो है वो हर चैनल के अंदर भी जाके शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो एसेट्स वगैरह ढूंढने के लिए। इसी के अंदर एक लिंक है गूगल ड्राइव का, उसे क्लिक करोगे सारे एसेट्स आ जाएंगे। उसमें यूआई किट्स भी पड़ी हुई हैं, उसमें हर तरह का एसेट पड़ा है। सो यू कैन जस्ट यूज दोस एसेट्स एंड यूज देम, यूटिलाइज देम टू मेक अ गेम। Again, minimalistic UI and minimalistic arcade environments. It's not about आपकी गेम won't win the game jam अगर आप कहते हो मैंने बस जो जिस तरह गेम दिखती है वो तो मैंने बस बेहतरीन कर देना, राइट, सारी मैं एफर्ट उसमें लगाऊंगा, लेकिन आपकी गेम में कोई गेम प्ले ही नहीं, आपकी गेम से मुझे मजा ही नहीं आ रहा खेल के, तो वो ये तो बड़ी बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि वो गेम किस तरह जीत सकती है। गेम्स आर मेंट टू बी, a big part of games is that you or the players have fun playing it, and that's amalgamation of a lot of things, primarily design. So जो डिजाइन है, और मैं अगेन हमने एक वीडियो भी की थी गेम डिजाइन और गेम आर्ट्स में। there's always a, लोग समझते हैं गेम डिजाइन और गेम आर्ट सेम चीज है। गेम डिजाइन is when is the entire process of developing a game, right? कि अपने गेम में करना क्या है, गेम किस चीज के बारे में, गेम में क्या लेवल्स है कि वो एंडलेस है, गेम में यूजर कर क्या रहा है, मैं क्या करूंगा गेम के अंदर कि यूजर मेरे साथ वो गेम खेलना चाहे, वो सब कुछ गेम डिजाइन है। मैं ह्यूमन चाहिए कैसे समझूंगा, मैं किस तरह उसको इंगेज रखूंगा अपनी गेम में, यूजर सोचते कैसे हैं, मैं किस तरह उनके टच पॉइंट्स कम करके उनको अपनी गेम में और इन्वॉल्व रखूंगा, वो मैं दुनिया कैसे बनाऊंगा जिसके अंदर आके यूजर ने गेम खेले। दैट इज गेम डिजाइन। पजल्स के अंदर गेम डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से जो पहले 2 दिन है, 8 दिन में सिर्फ 2 दिन ले रहे हैं, वो आपकी जो इंटायर गेम का जो स्कोप है और जो गेम की प्लेबिलिटी है सारी, और जो गेम का आइडिया है जिसके ऊपर हमने गेम बनानी है, उसे उन्हें लॉक करने के लिए। सो लिटरली like 10% of the time or 20% of the time is just spent
on locking the ideation bit. That is important. Game arts is जब आपकी गेम डिजाइन बन गया, सब कुछ हो गया, तो आपने कौन से अंदर एसेट्स डालने, आपने किस तरह यूजर को एंगेज रखना है गेम के अंदर थ्रू वेरियस मीडियम्स जो कि वो देख सके. वो यूआई भी हो सकता है, वो कलर स्कीम्स भी हो सकती हैं, वो कैमरा एंगल भी हो सकता है, वो लाइटिंग भी हो सकती है. इट्स नॉट जस्ट द एसेट्स दैट यू यूज, इट्स अ लॉट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन दैट आर्टिस्ट डू. तो प्लीज बी वेरी ऑफ द फैक्ट कि सिर्फ गेम डिजाइन गेम आर्ट बहुत फर्क चीजें हैं, उनका इंटरलिंक बहुत ज्यादा है, बट दे आर टू डिफरेंट पीपल. गेम आर्टिस्ट डिफरेंट गाय, गेम डिजाइन इज डन बाय डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर. और जो गेम आर्टिस्ट का काम है उसके अंदर इट्स नॉट जस्ट एसेट्स कि बच्चा मैंने बहुत अच्छा 3D एसेट यूज कर लिया. समटाइम्स इट्स जस्ट सिंपली एक लाइट चेंज और सिंपली कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर करने के लिए, और पूरा गेम प्ले का प्लेबिलिटी चेंज हो जाती है. पीपल स्टार्ट हैविंग फन while playing those games. So please again like it's written over here, अपनी गेम को जितना क्लीन रखेंगे उतना बेहतर होगा. ज्यादा चीजें अंदर दिखाने से क्लटर होगी सिर्फ स्क्रीन में गेम प्ले बेहतर नहीं होगा. और जो आर्केड एनवायरनमेंट है वो मिनिमलिस्टिक रखें. यूटिलाइज योर टाइम प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड गेम डिजाइन and sort of then enveloping it or sort of enveloping it into a world जिसके अंदर उस तरह के गेम डिजाइन चले और वो उसका रिलेट कर सके. इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत हैवी एनवायरनमेंट डालने लग जाए. इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट है और जो गेम की और जो यूजर जिस तरह गेम देखना चाहेगा उन दोनों का एमालगमेट करें और उसके ऊपर एनवायरनमेंट बनाए. अगेन हमें एंड में जब आप गेम बना लेंगे तो हमें आपसे एक एंड्रॉयड एपीके दरकार होगी. प्लीज हमेशा ये होता है हम नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन यहाँ दी हुई है. जब आप एपीके फाइनल बनाएंगे तो प्लीज इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है. वरना हमेशा मसला होता है, कोई किसी तरह लिख रहा होता है, किसी तरह लिख रहा होता है, तो एंड में सॉर्टिंग में इट्स ऑलवेज हैसल फॉर अस. और जूसीनेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किसी को पता है जूसीनेस होता क्या है? अगर आप YouTube कमेंट्स में लिख सको, आई जस्ट स्विच ओवर टू YouTube कमेंट्स एंड सी के व्हाट आर यू गाइस राइटिंग उसके. So yes, please let us know what juiciness is. I'm just going to take a pause on it. Yeah, there's a big lag between the live stream and my YouTube stream. So yeah, there's a feel of the game. Yeah, to some extent. Yeah, sounds inappropriate, but I assume it's to make the game have that oomph. Well, yeah, I don't know why it sounds inappropriate. It's just juiciness. But yeah, Zishan raised a very good point. The feeling of satisfaction from a game, correct? How interesting the game is now. Yeah, but how? Yeah, I'll just explain hota kya. Juiciness, enjoyability, extraordinary, something that keeps you wanting more. Okay, good animation, good music, giving your game that sauce that makes it spicy and fun to play. So yeah, Zoha, that's a good take on this, but I was looking for a more specific answer. Very, very fun core mechanic that complements the whole other game assets perfectly. So not necessarily, but that's not juiciness. Okay. So yeah, I've gotten my answer. So a lot of you gave really good answers. A lot of you were on the verge of getting more answers or in the direction of giving the right answer. So juiciness hota kya? Juiciness is a phenomena, if I might add, if I might say, okay, I don't know what that is. Okay, so juiciness जो होती है गेम में, वो ये होती है कि आप एक गेम में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज दिखा सकते हो. एक सपोज करो एक तरीके से कि एक मुक्का आ रहा है और वो मुक्का किसी को पड़ गया,
राइट, आपके गेम के अंदर ये एक चीज होती है, राइट। लेकिन आप इस तरह भी दिखा सकते हो कि मुक्का आया और ये आवाज के साथ आया। सो जूसीनेस इज एनीथिंग दैट कैन ऐड, that can communicate a message or a feeling or an emotion, or that can communicate the entire gameplay in a better way to a player. इसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि हमने सी वोट जूसीनेस के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप एक वीडियो खोलेंगे, उसके अंदर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हुआ है आगे जूसीनेस होती क्या है। बट सिंपली पुट, जूसीनेस इज एनीथिंग जिसकी वजह से आपका जो गेम प्ले है वो आप इनहेंस कर दो यूजर के, और जो आप चाह रहे हो कम्युनिकेट करना, जो गेम चाह रही है कम्युनिकेट करना, वो यूजर को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो जाए। बहुत मजे की चीज होती है कि अगर एक चीज है, आप अगर हारे हो गेम में तो आप सिर्फ पीछे एक यो यो यो, और मैंने बहुत ही गंदी म्यूजिक की एग्जांपल दी, लेकिन पीछे म्यूजिक लगा दो तो वो जूसीनेस में ऐड कर देगी। अगर आप कोई लेवल जीते हो तो ये की आवाज है, वो भी जूसीनेस में जूसीनेस जूस अप कर देगी गेम को। सो एनीथिंग दैट कैन ऐड वैल्यू टू अ गेम प्ले। ये हो सकता है आपका, आप कोई गेम खेल रहे हो जिसके अंदर लेवल्स आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, और आप जब भी कोई चीज पिकअप करते हो तो ऊपर सपोज को स्टार पिकअप कर रहे हो तो स्टार एकदम से शाइन कर, तो आपको पता लग जाए ओ मैंने स्टार पिकअप कर ली, राइट। सो एक यूआई के अंदर थ्रू जूसीनेस बेहतर हो जाएगी। So again, anything that adds value to the overall gameplay and makes it much more fun to play and communicates what is going on in the game to a user in a better way. For a better example, एक यहाँ पे वीडियो लिंक हुई हुई है, आप वो देख सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि नाउ जहाँ पे बहुत से डूज हैं वहाँ पे कुछ डोंट्स भी। हमने आपको बहुत सी गेम्स के बारे में बताया है, हमने अंदर शेयर भी कर दी है। प्लीज डोंट ब्लेटेंटली कॉपी देम, ठीक है। यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, लेकिन ये नहीं होगा कि आप सिर्फ एक गेम उठाएं, उसके ऊपर कहें यार अच्छा मैं यही वाली पूरी चीज एक और जगह जाके फिट कर दूंगा और बस गेम बन जाएगी। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। यू नीड टू कम अप विद एन आइडिया ऑफ योर ओन एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दीज गेम्स, और उनको अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी गेम आइडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना। फिर हमने ये भी सोचना है कौन से वाला आइडिया मैंने कहा अपनी गेम के अंदर इंप्लीमेंट करना, या आप इनमें से कुछ भी ना करें, यू कम अप विद अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट होता यही है कि पजल्स में बहुत सी कैटेगरीज हैं, बहुत सी ऐसी ट्रिपल ए गेम्स जिनके अंदर पजल्स होते हैं। आप उसका कोई लोअर डाउन वर्जन निकाल के जो कि एक मोबाइल गेम के ऊपर आप बना सकें, आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो प्लीज प्लीज रिमेंबर द गेम्स एंड वट एवर रेफरेंसेज यू कम अप विद आर जस्ट रेफरेंसेज, they are just there to take inspiration, they are not there to blatantly get copied. Again, avoid complicated control schemes. आपके जितना आसान होगा यूजर को आपकी गेम से कम्युनिकेट करना, उतना ही अच्छा आप उस गेम प्ले के अंदर वैल्यू ऐड कर। इट्स अगेन नॉट एज इफ कि आपने कहा जी मैंने 6 जगह अंगूठा लगाओगे तो एक बंदा आगे जाएगा। वो अपने आप अपनी गेम प्ले के अंदर फजूल में क्लटर कर रहे हो। द क्लटर शुड नॉट बी ओवर देयर, इट शुड बी वेरी इजी टू प्ले एंड इट शुड बी फन। So that's the entire bit. Puzzles के अंदर again, like I said, your focus should be having a smooth core mechanic, but the design should be so strong कि वो mechanics के ऊपर गेम की बात रही ना, वो mechanics से बाहर निकल जाए और डिजाइन के अंदर बात जाए। लेकिन आपको जब इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक स्मूथ मैकेनिक अंदर इंप्लीमेंट करना ही करना। तो दैट्स हाउ this should be your thought process. It should not be कि ओ मुझे तो बस यार ये मैं हर तरह के अंदर गेम में डाल देता हूँ तो गेम अच्छी हो जाएगी। Less is more in this instance, लेकिन वो लेस क्या है वो आप लोगों ने सोचना है। अच्छा, एंड अगेन प्लीज डोंट थिंक कि आप कैंडी क्रश बना दोगे तो बस काम हो जाएगा, राइट। कैंडी क्रश इज अ मैच 3 sort of a puzzle game. आप मैच 3 गेम्स बना सकते हो, they are difficult to make, बट सिर्फ कैंडी क्रश की कॉन्सेप्ट लेके आप पूरी गेम नहीं बना सकते। यू वुड नीड टू एक्चुअली टेक द कोर द मैच 3 मैकेनिक बाय मैच 3, आई मीन जो आप वो तीनों चीजें इकट्ठे करके चीज करते हो। जिस तरह कैंडी क्रश में होता है कि तीनों चीजें अगर रेड 3 हो जाए तो उड़ जाएंगी और फिर उसके नीचे और चीजें आ जाएंगी। बट व्हाट वी सजेस्ट इज कि कैंडी क्रश को अपना फोकस ना रखें पजल का। Your focus should be puzzles.
in whatever way, shape or form, they should be puzzles. और there are a lot of instances जिसके ऊपर आप पजल बना सकते हैं. जिस तरह आपने जैम करेंगे अपने मेंटर्स के साथ, आपको वो चीज बेहतरी से समझ आ जाएगी. Again, like always, स्कोरिंग क्राइटेरिया लोग पूछते हैं क्या होगा. सो इनिशियली इट्स द आइडिया एंड उनकी डिफरेंट वेटेजेस होती हैं. सो आइडिया इज नंबर 1. आपका आइडिया कितना क्रिएटिव था, आपका जो आइडिया था उसके अंदर आपने जो जो पजल बनाया है वो कितना एंटरटेनिंग था, राइट. और कितना मजा आया एक प्लेयर को वो गेम खेल के, कितना कंप्लीट था, राइट. उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं थी. सो दैट्स द आइडिया. अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट का कि आपका आइडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो. आपका आइडिया बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली आपने गेम में इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया. दैट्स व्हाट इट मीन्स. अगेन, एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आपका जो काफी बच्चे होते हैं वो गेम बना लेते हैं और वो थीम पे नहीं होती. तो अगेन, हमारी जो थीम है वो पजल्स है और आपने उसके अराउंड ही गेम बनाना. और अगर आप किसी को लगता है, मैंने बहुत इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, तो किसी को लगता है कि अगर मुझे बहुत अच्छी गेम डेव आती है और मुझे आइडिएशन की जरूरत नहीं है मेंटोर से, तो आई वुड से थिंक अगेन. आइडिएशन इज द मेन बिट. और अगर आप उसमें आपको गाइडेंस मिल जाए तो उससे आपको और क्या चाहिए. एंड दिस टाइम अराउंड वी हैव अराउंड, तो हमेशा आपको जो हमारे पास मतलब 20 मेंटोर्स हैं और वो सिर्फ इस वजह से यहाँ पे कि आपको वो गाइड कर सकें. और दे हैव years and years and years of experience, जिसके ऊपर वो जिसको वो यूटिलाइज करके आपको एक लिटरली आधे घंटे की मीटिंग में आपके आइडिया को एक प्लेबल आइडिया के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. तो दैट्स द एंटायरमेंट. एंड अगेन, लास्ट चीज ये, हाउ वेल थ्रू आउट थॉट आउट इज द गेम डिजाइन. अगेन, जिस तरह मैंने पहले कहा, अब कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट तो नहीं गेम डिजाइन पे कि यार ये बस चीज चल पड़ेगी यार, मैं डेवलपमेंट शुरू कर देता हूँ. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. You need to spend some time in actually making sure that your game design makes sense. और इसमें तो जो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं so that you can integrate those things initially, और आप उसके ऊपर डेवलप करके गेम बना सको. गेम प्ले में दो चीजें अगेन आती हैं, कि आपका जो आइडिया है और आपका कोर मैकेनिक है वो किस तरह दरमियान में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और कुछ अगर आपने कितना अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जिसके अंदर वो गेम चल रही है. और गेम प्ले में एक और चीज भी आई थी कि आपने गेम में कितना जूस ऐड किया. तो ये चीजें जस्ट ऐड वैल्यू टू द गेम प्ले एज वेल, सो दैट whoever is playing the game has fun while doing it. ग्राफिक्स, आर्ट्स एंड यूएक्स, ये तीनों क्लब हुए हैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर. मैंने 2-3 मतलब पहले कहा है कि आपकी मेन चीज इसमें गेम डिजाइन है और ग्राफिक्स सेकेंडरी. इसका ये मतलब नहीं कि आपको मैंने ग्राफिक्स डालने ही नहीं. इसका मतलब ये है कि इसमें जो मेन चीज है जिस पर हमें फोकस करना है वो उसका इन्वायरमेंट नहीं है, वो थोड़ा सेकेंडरी आ जाता है. इसमें जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और आपने अगर डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली यूआई एंड द ग्राफिक्स प्ले अ ह्यूज पार्ट. आप ये नहीं कर सकते आप मुझे सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट गेम दे दो यार और उसका डिजाइन बहुत अच्छा हो, एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो, गेम प्ले मजे का हो, लेकिन कोई अंदर मजा ही ना आ रहा हो गेम खेलने का, इट्स टू डल, तो दैट गेम वोंट गेट पॉइंट्स. सो यू नीड टू वर्क ऑन द डिजाइन पार्ट ऑफ थिंग्स. कौन सा आर्ट वर्क यूज किया हुआ है, कितना क्रिएटिवली आपने इस्तेमाल किया हुआ है, कैमरा एंगल क्या है, लाइटिंग कैसी हुई हुई है, सो ऑन सो फोर्थ, ताकि वो जो यूजर को मतलब जो यूजर सेटिस्फाइड फील कर रहा है गेम खेलते हुए वो उसको मिले. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो एक फन फैक्टर निकलता है. जो भी गेम खेल रहा है उसको मजा आया क्या नहीं आया गेम खेल. अब ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड. और ये सिर्फ आपको जब आप गेम जैम में आए हो, तो आपको ये जब आप गेम बनाओगे ना तो आपको उस वक्त फील होगी कि मैंने फन फैक्टर, यार इस गेम में तो मजा आ रहा है गेम खेल. तो जब आप हमने 8-10 गेम्स आपको एग्जांपल्स भी दिए, जब आप खेलोगे तो कुछ में आपको मजा आएगा और कुछ में मजा नहीं आएगा. तो आपको शुरू में समझ नहीं आएगी कि वो एक्चुअली चीज है क्या, लेकिन वंस यू गो इन यू विल अंडरस्टैंड यार इस गेम में इस चीज की वजह से मजा आ रहा है, इस गेम में जो पजल है या फिर जो मैकेनिक है वो पजल से इतना अच्छा कनेक्ट हुआ है कि मुझे मजा आ रहा है गेम खेल के. तो वो जो फन फैक्टर है ना गेम में, दैट शुड ऑलवेज बी ओवर देयर. मे बी योर जो आपने एनवायरनमेंट बनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और बंदा का यार ये जो पीछे एनवायरनमेंट है उसको उसके ऊपर जो ये पूरा गेम का पजल है, जो पजल्स का पूरा फ्रेमवर्क है बहुत अच्छा बैठ रहा है.
तो ये चीजें कुछ हैं जिसके ऊपर हम पूरी चीज को वेटेज दे रहे हूँ। हमेशा लर्निंग मटेरियल हम देते हैं। इस मरतबा की तरह भी आपसे ये चीजें शेयर हो जाएंगी, उसके अंदर अगर आप इस पे होवर करेंगे तो गेम डिजाइन के ऊपर हमारे पास वीडियो है, डेटा ड्रिवन गेम डिजाइन के ऊपर है, यूनिटी के इंट्रो के ऊपर है, फिजिक्स के ऊपर है, स्क्रिप्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने कुछ प्रिलिमिनरी के साथ सेशंस दिए हुए जो कि हमारे समर गेम जैम में होते हैं, और उनको आप बेस बना के चीजें सीख भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एसिड्स की बात हुई थी, तो एसिड्स जो हैं वो सारे के सारे अगेन इस गेम जैम गाइड के अंदर हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये सब एसिड्स के अंदर पड़े हुए हैं। वी हैव environments, characters, UI packs, background music, particle effects, SFX, and game templates. ये सब कुछ इनके अंदर पड़ा हुआ है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी गेम में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं गेम प्ले को बेहतर करने के लिए। सो दिस टाइम अराउंड वी हैव very big cash prize. So the winner gets 400,000 PKR, which is the biggest prize in any competition, game jam related, game building related, Pakistan के अंदर। The second runners up, the second prize is 250K, which is 2.5 lakh रुपए। The third है वो 1.5 लाख रुपए, which is 150K। इसके अलावा जो कैश प्राइजेस हैं, इसके अलावा हमारे को 10 अवार्ड्स होते हैं, वो हम नोटेबल टीम्स को देते हैं, जिसके अंदर बेस्ट आर्ट्स, बेस्ट गेम प्ले, नॉस्टैल्जिया और हमारी 8-10 इन जो हमारी कैटेगरीज है उसके अंदर आपको स्पेशल मेंशंस मिलते हैं। दैट्स दैट। और जो अगर आप इसमें कुछ भी ना जीत सके, ना नोटेबल प्राइज में आए, तो सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे, और आप लोग आगे जाके अपने लिंक्डइन पे हर जगह लगा सकते हो। इसके अलावा हम क्या क्या ऑफर करते हैं, तो अगर आप में से कोई भी हमारी वेबसाइट पे गया हो तो उसके अंदर हमने सेक्शंस बना दिए हैं अपने रुकी गेम जैम के भी और विक्टर गेम जैम के भी। तो वहां पे आपका परमानेंट मेंशन आ जाएगा, आपका नाम, आपकी तस्वीर, आप किसी यूनिवर्सिटी में हो या फिर जहाँ पे काम करते हो वो सब हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स ही मिल जाएंगे। अब इस मतलब जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं वो आप डिजिटली वेरीफाई भी कर सकते हो, तो आपने कहीं पर लिंक किया है तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, विक्टर गेम जैम में इस कैंडिडेट ने आके पार्टिसिपेट किया था, गेम दी भी थी, कौन सी गेम दी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम ये डिजिटल वेरिफिकेशन दे रहे हैं बिकॉज सिंस वी कंडक्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट गेम जैम और इसकी एक प्रेस्टीज बन चुकी हुई है, तो उसको सिर्फ सॉलिडिफाई करने के लिए आपकी पोर्टफोलियो के लिए हम लोग पीछे से डिजिटली वेरीफाई करेंगे हर सर्टिफिकेट को, और एक्नॉलेजमेंट लेटर जाता है यूनिवर्सिटीज को और स्टूडेंट्स को भी। तो इस मरतबा वाया ईमेल वो सब जाएंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर के, इस यूनिवर्सिटी के किसी जिस पर बच्चे ने गेम जैम में पार्टिसिपेट किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एंड सो ऑन सो। तो ये सब दीज आर द प्राइजेस सो टू से, पूरी चीज पूरी गेम जैम। हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, आई वोंट गो थ्रू देम, ये हमने डिस्कॉर्ड पे भी डाल दी है। एक हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का बना दिया है चैनल, उसके अंदर ये सारे पोस्ट हो चुके हुए हैं। उसके अलावा काफी अदर फैक्ट्स हैं जो कि उसके अंदर हमने वैसे भी डाले हैं, जो कि आपको मख्तलिफ बच्चे हमसे पूछते रहते, तो हमने उन सबको क्लब कर दिया है और वहां पे रख दिया है। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, एंड दैट इज द ओरिएंटेशन। रमशा, आई बिलीव वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज मैं देख रहा था और इसमें काफी तुम्हारे चैट के अंदर सवाल जवाब आई जा रहे थे। So yes, so we have Hira here with us. Okay. She's gonna help us out with that. Hira has been noting all of the questions, has been answering them on the side. So Hira, go ahead. So guys, very explanatory and interactive session. I believe majority को जो questions हैं उनके answers side by side हो गए होंगे, but regardless, those who have joined in the middle, तो उनको answers मिल जाएंगे और कुछ को reinforce हो जाएंगे. So we have a couple of questions with us. Amara Malik and few participants have asked, can we make PC games or will be making only mobile games? So we'll be only making mobile games. मैं 2-3 सवाल जो मैं भी में पढ़ा था उनका जवाब दे देता हूँ। सिर्फ मोबाइल बेस्ड गेम्स बनेगी इसके अंदर, इसलिए हमने APK मांगी है एट द एंड। इट इज ओनली मोबाइल गेम्स और द इंजन दैट वी यूजिंग इज यूनिटी। सो ये दो चीजें। यस।
does this game have to be 2D puzzle platform, or can it be like a puzzle with cards and a strategy behind that? So yeah, again, like I said before, a very interesting question again. आपको अगर आप कोई puzzles बना सकते हो कार्ड से, then why not? You can make one, right? अगर आप 2D इस्तेमाल करना चाहते हो, तो fair enough. We would prefer 3D, लेकिन आपका गेम प्ले इस मर्तबा it's more about gameplay and how you present that gameplay in an environment. So yes, 2D हो जाए कोई मसला नहीं, but 3D is preferred. Okay. एक और question है by Mohammed Moiz bin Sajjad, and a couple of more participants have asked related to HCG games. Can we make a non-HCG game, or the games has to be HCG? So this time around इस मर्तबा कोई hyper casual Yeah. genre नहीं है. The underlying theme or the underpinning theme is puzzles, right? और आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास 10 दिन है गेम बनाने के, और आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने जो पजल्स के ऊपर गेम बना रहे हैं उसमें प्लेएबिलिटी भी डालनी है, और उसके अंदर आपने जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरैक्टिव भी रखना है, और उनकी मतलब जब वो गेम खेल रहे हैं तो उसमें वैल्यू ऐड करनी है. तो यू कांट गो ओवरबोर्ड कि आपको या मिड कोर गेम बनाना, दैट वोंट वर्क. ठीक है, अब बस है भी 10 दिन, तो आपको अपना स्कोप भी मैनेज करना है, और आपने उस स्कोप को एक 10 दिन के अंदर एक गेम बनाने में ट्रांसलेट भी करना. तो यू जस्ट कांट हैव लाइक, आप ये नहीं कह सकते कि ओह मैं मिड कोर गेम बना रहा. अगेन हैविंग सेड दैट, हाइपर कैजुअल नहीं, कोई जॉनरा नहीं है इस मर्तबा डिफाइंड. यू कैन sort of switch genres per se. There's no genre का problem over here. It's just about कि आपने puzzle की गेम implement कैसे की है, और again 10 दिन में आप कौन सी गेम बना सकते हो. We would prefer अगर वो गेम, because hyper casual games are simple to play and casual games are simple to play, तो आप उसी realms में रह के गेम बनाएं. Okay, perfect. And we have another question by Sabhan Akram. If someone is creating a level-based game, then how much minimum level should be there? कितने levels होने चाहिए? तो आपका जो इंटायर गेम प्ले है वो 5 मिनट का हो. आप जितने गेम लेवल्स बना सकते हो, टू बी ऑनेस्ट दैट शुड बी द गोल. अब आप बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 5 से 6 लेवल्स तो हो. अगर आप लेवल बेस्ड पजल बना रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 लेवल्स तो हो, लेकिन आपका जो गेम प्ले है वो 5 मिनट का होना चाहिए. All right. There is another question by Sabhan Akram. Which format do we have to share the APK files? APK फॉर्मेट में, APK इज अ फॉर्मेट, तो उसी में शेयर करनी है. Okay, सही है. एक learning perspective से related भी question है कि how mentors will guide us, what can we expect from them, and how can we communicate with them? So mentors में अगेन मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर बताया तो कि मेंटर्स इस पूरी गेम जैम में आपको लिटरली आपका गाइड करेंगे पूरी पाइपलाइन से, आइडिएशन से लेके सबमिशन तक. हर चीज आप अपने मेंटोर से जाके डिस्कस कर सकते हो. शुरू में तो आपके पास कोई गेम के आइडिया होंगे ना 3-4, राइट, और वो मैं आगे बताते भी करना क्या है. लेकिन सपोज करें आपके पास कोई गेम के आइडियाज अभी दिमाग में आ रहे होंगे, राइट. आपने कहा मैं इस तरह ही गेम बनाऊंगा, मैं ये वाली गेम बनाऊंगा, मैं ये वाली गेम बनाऊंगा. सबसे पहले आपने उस आइडिया को ट्रांसलेट करना है गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर. एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि अभी आपसे शेयर हो जाएगा. वो जो डॉक्यूमेंट है आपने मेंटोर के साथ वो हम सबमिट करोगे, वो मेंटोर के साथ जाके डिस्कस करोगे. एक ऑनलाइन सेशन बुक हो गया, आपको हर चैनल के अंदर आपके मेंटोर का कैलेंडर आ जाएगा. आप उससे क्लिक करोगे, आप जाके देख सकते हो जब भी आप फ्री हो, और जब आपके मेंटोर फ्री है आप एक सेशन बुक करोगे और आप जाके वो जो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट है वो उनसे डिस्कस करोगे. वो आपको वहां से लेके और आपकी गेम की एंड तक यूं ही गाइड करते रहेंगे. अच्छा इसको निकाल दो, अगर इसको यूं करे तो क्या होगा, ये वाला फीचर डाल दो, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये 10 दिन में नहीं होगा, ये चीज तुम डाल रहे हो तो जिस टारगेट मार्केट को तुम देखना चाह रहे हो वो उससे पसंद नहीं आएगी, ये तुम्हारी गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. ये हो गए सारे जो गेम प्ले रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर. फिर आपको टेक्निकल मसले भी आएंगे. लाइक आई सेड बिफोर, टेक्निकल मसले आप वैसे भी कम्युनिटी को यूटिलाइज करो टेक्निकल मसले सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपका टेक्निकल मसला बहुत ज्यादा हो गया, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा,
तो यू कैन कम टू अस, और आपका जो मेंटोर है वो आपको टेक्निकल मसला सॉल्व करने में भी हेल्प आउट कर देंगे. Please remember that before you are a game developer, before you are a game artist, before you are anything related to game development or game building, you need to be a game designer. आप अगर गेम डिजाइन अच्छी नहीं कर पाओगे तो वो जितने मर्जी अच्छे चीते प्रोग्रामर हो जाओ फायदा नहीं है, इतने अच्छे आर्टिस्ट हो जाओ फायदा नहीं है. गेम डिजाइन इज द मेन थिंग, और मेंटोर आपको सबसे ज्यादा ये चीज सिखाएगा गेम डिजाइन किस तरह अच्छी तरीके से कर सकते हो. या तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Okay, and Ali Murtaza has asked, what if we want to change the idea in one of the later days, as it often happens that design changes during the time of play testing, etc. So that's also a very interesting question. Ali, I would recommend if for a 10-day game jam, you should be so clear as to what your idea is in the first 2 days. जितना मतलब जाके पेपर दे रहे हो, right? The reason being कि डे 5 पे यू कैंट से ओ यार मैं तो कुछ और कर लेता हूँ लेकिन यार ये मजा नहीं आ रहा, वो नहीं हो सकता. क्योंकि आप 5 दिन यू कैन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कम से कम आइडिया मेंटर से फिर लॉक कराओ, एंड देन बिफोर यू नो व्हाट द गेम जैम्स फॉर. सो द वे टू डू इट प्रॉपरली इज, अभी मैं आगे फिर भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके पास गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट आ गया है, कम अप विद एटलीस्ट फिल इट अप 3-4 डिफरेंट आइडियाज के साथ. जब वो आइडिया सामने हो तो अपने मेंटोर से वो चारों डिस्कस करो, और जिस तरह आपको कोई मेंटोर्स गाइड करें, और उसी वक्त गेम की निट्टी ग्रिटी जो मेन कंपोनेंट डिजाइन का, इसके अंदर क्या होगा, गेम प्ले क्या होगा, कोड लूप क्या होगा, सेक्टर सेक्टर सेक्टर, वो सब चीजें क्लैरिफाई हो जाए, ताकि आगे जाके डिजाइन से बात आगे निकल जाए और जो डेवलपमेंट के मसले हैं वो सॉल्व हो, और जो आपको लग रहा है कि प्लेबिलिटी बेहतर हो सकती है पोस्ट प्रोडक्शन में, वो सॉल्व हो जाए. तो या I would say कि पहले 2 दिन में please lock your ideas. Okay, we have the last question. Abdullah Khan has asked, how friendly is Winter Game Jam for beginners, and what software and tools will we be interacting with? So the Winter Game Jam is like you will get to make a game from scratch, from literally शुरू से लेके end तक in like 10 days. So think of it as like a trailer, or like a very like game developer on steroids for anybody who जिसको पता भी है गेम डेवलपमेंट का या फिर नहीं पता, आपको वो इन योर फेस आ जाता है, ओ यार ये गेम डेवलपमेंट ये है, पहले ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, और इसमें क्या क्या चीजें अपने सामने रखनी है, पूरी पाइपलाइन है क्या. सो फॉर एनीबडी हु हैज एन इंटरेस्ट इन गेम डेवलपमेंट, जो गेम डेवलपमेंट पहले की हो या फिर ना की हो, या फिर उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, तो विंटर गेम जैम इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी टू कम and experience what it is like to make a game. So beginner ho या now, I always say that you need to start somewhere, right? हर बंदा कहता है, काफी बच्चे आके कहते हैं मैं तो बिगिनर में जा रहा हूँ. भाई अगर सीखना नहीं है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, तो why not start today? तो बिगिनर्स के लिए भी फायदेमंद है एक डिफरेंट लेवल पे, जिनको थोड़ी आती है गेम डेव उनके लिए फायदेमंद है एक और लेवल पे, लेकिन जिनको बहुत अच्छी आती है उनको फायदेमंद है एक और लेवल पे, लेकिन सबके लिए एक बेस तो सेम है. आप 10 दिन के अंदर पूरी गेम बिल्डिंग पाइपलाइन, जिसके अंदर आइडिएशन, डेवलपमेंट, आर्ट्स का कंपोनेंट एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन कवर कर लेते हो, एंड देन यू get to live the entire experience in 10 days, and you are competing with literally the entire game building community of Pakistan. जिस तरह रमचन शुरू में numbers बताए, those are some very impressive numbers. So that adrenaline rush is just fun to be a part of. Anything else? Well, King, you have asked, can I include multiple puzzle mechanics in my game? So multiple puzzle mechanics, I would suggest कि आप एक ही मैकेनिक पे रहें और उसको इतना अच्छा पॉलिश करें कि आपकी गेम में प्लेबिलिटी में मजा आए. जहां तक मुझे समझ आ रही है, आई थिंक आप मिनी गेम्स बनाना चाह रहे हो गेम में, तभी मल्टीपल मैकेनिक्स आप डाल सकते हो, जहां तक मुझे आपकी बात की समझ आई.
but that can also be a possibility. But I would suggest कि अगर मर्तबा यूजर आया और उसने चीज पे अगर वो टैप वाला मैकेनिक अंदर है या फिर स्वाइप वाला है, तो उसकी अगर उसे आदत हो गई है तो अगले लेवल पे फर्क मैकेनिक ना लेके जाओ. यूजर विल बी लाइक यार व्हाट द हेल, मैंने एक चीज पहले मुझे ट्रेन किया उस पर, मुझे मजा भी आ रहा है उस पर, फिर मैकेनिक चेंज किया. Okay, the Ultimate Sigma has asked a question repetitively. Can we use assets other than the ones provided? Yes, you can use any assets you want. The assets over there are just for students. कि ये मेन चीजें पड़ी हुई हमारे पास, इन्हें इस्तेमाल कर लो. टाइम चूंकि कम होता है गेम जार्स में, तो a lot of them just go ahead से अच्छा यार मैं ये उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ, स्पेशली विंटर्स में मैं ये उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ, ताकि उन्हें वो टाइम वेस्ट ना हो. उनमें से काफी हाई क्वालिटी एसेट्स भी हैं, तो ज्यादातर लोग बच्चों को फायदा ही होता है. हैविंग सेड दैट, यू कैन जस्ट गो and if you want make your own assets, but if you have enough time 10 दिन के अंदर to do so, nothing would please me more. But I can assure you, you'll be stuck in limbo अगर आप अपने asset बनाने लग गए. Anything Yeah. else, Hiba? No, that's pretty much it. Major chunk of the questions have been answered. I think Sayyid Murtaza Ali Shah ने पूछा है भी, can it be a fighting shooting genre with the core puzzle functionality? So आप fighting game को भी reimagine कर सकते हो as a puzzle. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और बाबर ने अपनी वीडियो में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है. Again, the premise over here should not be to make a fighting game. Your premise should always be to make a puzzle game. उसका environment और logic क्या होती है, that can be discussed. लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो ना, you are just trying to, जो मुझे समझ आई है, don't try to make a fighting game and fit puzzle into it. It should be I'm making a puzzle game जिसका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है या फिर पूरा जो फ्रेमवर्क है उसमें कहीं फाइटिंग का कोई ना कोई एलिमेंट है, बट योर बेस शुड ऑलवेज बी पजल्स. ओके, एक और चीज है, क्वेश्चन, कैन वी सबमिट मोर देन वन एपीके इफ वी कैन मेक? सो नो, वन सबमिशन पर टीम. इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, दैट इज व्हाट यू मेंट कि मैं मल्टीपल गेम सबमिट करा सकता हूँ. अहमद रहमानी, इफ अगर आप 10 दिन के अंदर 2 पजल की थीम के ऊपर गेम सबमिट करा सकते हैं तो दैट बी ग्रेट. मतलब आई वुड लव टू सी दैट, बट it would be really, it would be a task to say the least. So what I would recommend is, if you can sort of submit 2 games, brilliant, but if you can't, just concentrate on one, right? That'll be much more interesting. Okay, Arsalan, can we come to your office daily during office hours throughout the game? Yes, our office is open from 10 through 7 for the next 10 days. आप लोग अंदर आ सकते हो, मतलब आओ 10 बजे, 7 बजे तक बैठे रहो, काम करो. ये मत एक्सपेक्ट करना कि वहां पे हम तुम लोग से बैठ के काम करें. The space is open, अगर कोई मसला हो तो पूछ लो, लेकिन the entire bit is जब आइडिएशन आपकी मेंटोर के साथ है, डेवलपमेंट आपने खुद करनी है, बाद में मेंटोर से बैक एंड फोर्थ आपने खुद जाना है. अगर आपके मेंटोर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप मेंटोर से फिजिकली मिल भी सकते हो, तो वो सब कुछ फायदा है. तो या टू आंसर योर क्वेश्चन, यस आप आ सकते हो, बट अगेन डोंट, ये ना मत देखना कि हम वहां पे उंगली पकड़ के तुम लोगों से गेम बनवाएंगे. दैट्स नॉट व्हाट वी मीन बाय कि हमारे दफ्तर के दरवाजे खोले और हम यूं गाइड करते थे. वी विल गाइड यू, बट हम साथ बैठ के पूरा दिन नहीं बैठे रहेंगे, खुद भी कुछ करना पड़ेगा. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड यू नो डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल. अच्छा, अवैस कह रहे हैं आप इतने प्यारे क्यों लग रहे हो भाई? यार ये तो ऊपर वाले की देन है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता. तो ये वैसे मैं भी कई बार सोचता हूँ मैं इतना प्यारा क्यों, लेकिन अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला. इट्स जस्ट द वे इट इज, यू नो. मैं आई कांट हेल्प इट, इट्स जस्ट आई एम टू गुड. या सो या जस्ट किडिंग बाय द वे. इसके अलावा हिरा कोई सवाल? इतनी ज्यादा सवाल थे, मैं तो दरमियान में जब पढ़ा था मैंने पर जवाब दे दिए. no major chunk or important questions have been asked. I think other questions can be answered through the guide. Okay, yeah, that's true.
एक बच्चे ने कहा रोटी का तो बताया नहीं, तो यार रोटी होगी 10th of March को, पहले बता दिया है कि रोटी तो उस दिन होगी 10th को। उसके अलावा कोई सी नहीं, पिज्जा पार्टी ही होगी ईगो। इट विल बी अ पिज्जा पार्टी लाइक ऑलवेज एंड वील प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स टुगेदर एज वेल। दिस टाइम अराउंड विल मेक इट फन। ऑन द 10th of March जो पहला जो हमारा होता है इवेंट, हम उस पर बोर्ड गेम्स भी खेलेंगे साथ, जस्ट टू हैव बिट ऑफ फन विद एवरीबडी। यू नो, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू लाइक बोर्ड गेम्स, तो वील हैव कॉम्पिटिशंस बोर्ड गेम्स के, वो मजा आएगा। Can you make 3D games like 3D person focus to have 3D puzzle inside it, like to solve a puzzle in limited time? Yes, that's a very good example of a time-based puzzle game. आप वो कर सकते हो। Again, अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजें होंगी। मैं आपको कुछ लीविंग थॉट्स ये होंगे कि मैं अभी सब चैनल्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर होंगे, जिनमें से एक गेम जैम गाइड भी है। आप वो पढ़ो और जो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट है उस पर काम करना शुरू करो। ये सब अपने मेंटोर्स के साथ मीटिंग सेटअप करो और अपना आइडिया वो लॉक करो। कम इन दैट मीटिंग विद एटलीस्ट 2 or 3 आइडियाज, एटलीस्ट 3 आइडियाज, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि इफ द मेंटर लाइक दिस, तो मैं ये करूँ, या फिर मैं ये करूँ, या फिर मैं ये करूँ, ताकि आपके पास ऑप्शन हो। वंस यू डन, एंड मेक श्योर कि आप पहली मीटिंग में अपना आइडिया लॉक करके ही उठो। सो दैट शुड बी योर गोल। होता बहुत कम है, लेकिन अगर वो हो जाए तो आप लोगों का काफी टाइम बच जाएगा। या अगर पहली मीटिंग में नहीं होता तो गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, जो चेंजेस कहें वो इम्प्लीमेंट करो, और फिर वापस आओ मेंटर से अपना आइडिया लॉक कराओ, ताकि वो शुरू हो जाए आपका डेवलपमेंट प्रोसेस। हम जो बाबर की वीडियो वो भी अभी शेयर कर देंगे, उस पर जरूर देखो। बाबर ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने रखे हुए, जिसके ऊपर आप अपना कर सकते हो, डिजाइन और इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो देखो। और प्लीज, अगेन फॉर द लव ऑफ गॉड, मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूँ, गेम जैम गाइड पढ़ लो, और जितनी भी कम्युनिकेशन है वो अपने डिस्कॉर्ड चैनल में करना, वो बहुत जरूरी है। मतलब मैं मिन्नत ही कर सकता हूँ ज्यादा बच्चों की, यार प्लीज डिस्कॉर्ड चैनल बनाया इस वजह से ताकि तुम लोगों से कम्युनिकेशन हो। तो अगर कहते हो तो पेरेंट चैनल खत्म कर देते हैं, मैं भी व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ, और मतलब व्हाट्सएप खेलते हैं। बट प्लीज अपना डिस्कॉर्ड चैनल इस्तेमाल करें कम्युनिकेट करने के लिए। हमें रेगुलरली बग करें वहां पे, ओ ये देखिए मैंने कोई चीज कर ली, ओ मैंने ये चीज कर ली, ओ मैंने ये चीज कर ली, ताकि हम आपको प्रॉपर फीडबैक दे सकें। यस, तो दैट इज ऑल आई थिंक, रमशा, फ्रॉम आवर एंड। इज रमशा अराउंड? यस, शी इज अराउंड। Yeah, so guys, again, really excited that the Winter Game Jam is starting. बहुत मजा आने वाला है। 10 दिन जान मार दो और make some epic games and some kick-ass games. We'll be in contact over Discord, and I hope you guys have a lot of fun in the upcoming 10 days. कोई भी सवाल हो, अभी चैनल के अंदर आपको सबको टैग किया जाएगा, जो लॉबी चैनल है विंटर गेम जैम का, आप वहां पे पूछ सकते हो। I guess that is it from my end. Bye bye. Ciao.